السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جن پر کاپی رائٹ کلیم سے بچنے کی وجہ سے ہمیں اصل آواز کو ٹیمپر کرنا پڑتا ہے۔ آپ اسے ہماری مجبوری سمجھیے۔ یہی وجہ تھی کہ دلی سے اسلام قبول کرنے والی سیما کی کہانی میں ہمیں سیما کی آواز ٹیمپر کرنی پڑی تھی۔ اسی طرح آج یشوی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی میں بھی ہمیں یشوی کی آواز کو تھوڑا سا ٹیمپر کرنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ السلام علیکم۔ میں اپنی جو میں اسٹوری ہے میں اس کو ایسے پہلے اس کا ایک ڈسکرپشن چھوٹا سا دینا چاہوں گی۔ میری جو اسٹوری ہے وہ ہندوازم اینڈ کرسچینٹی ٹو اسلام ہے، یعنی کہ میں اس کو تھوڑا سا بہت ایزی کر دیتی ہوں۔ جو میرا جنم ہوا وہ ہندو پریوار میں ہوا ہے، اور جب میں 13 سال کی جب میں ہوئی تھی تو میں نے کرسچینٹی کو اپنایا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا، ایسا ہے۔ تو آج میں اسلام میں آ چکی ہوں، تو میری اسٹوری جو شروع ہوتی ہے وہ ہندو پریوار سے، جیسے میں ہوں تو میں ہندوازم سے شروع کرنا چاہوں گی۔ میرا پریویس نیم یشوی تھا، اور آج میں اپنا کو حاضرہ نام دینا پسند کرتی ہوں۔ تو میں ایک پوری ہول فیملی ہماری تھی، جس میں دادی چاچا چاچی تاؤ سب ہوتے، ایسی میری فیملی رہی۔ اور میں دیکھتی تھی کہ مندر ہمارے گھر میں ایک بنا رکھا ہوتا تھا، اور مورتیاں اور فوٹوز ہوتی جو دیوار پہ لگا کے رکھتے تھے، اور باقاعدہ پوجا بھی ہوتی تھی۔ ٹیوزڈے کو بھی الگ سے ہوتی تھی، ہنومان جی کی اگر میں کہوں تو مطلب ٹیوزڈے کے دن بولتے کہ ہوتی، اور ان کو ہم مندر جاتے ہیں، بوندی کا پرساد ہوتا ہے وہ بھی، تو اس طریقے سے چیزیں ہوتی تھی۔ گھر میں مندر بنا ہوا تھا، باقاعدہ پوجا ہوتی تھی، اور کچھ ہمارے گھر میں جو کالی ماتا جو ہوتی ہیں ان کا بکرا بھی کرتا تھا۔ میری موم کو پورا ہنومان چالیسا آتا تھا، ایون مجھے بھی پورا کا پورا ہنومان چالیسا منہ زبانی یاد ہے۔ اٹس لائک جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستر لوک اجاگر، رامدوت اتلت بلدھاما، انجنی پتر پون ست ناما، مہاویر وکرم بجرنگی، کمتی نواسمتی کے سنگی، کنچن برن براش سبیسا، کانل کندن کنچت کیسا، ہاتھ برجر او دوجا براجے، کاندے منہ جنے ہو ساجے، شنکر سون کیسری نندن، تیج پرتاپ مہاجگ بندن، ودیاوان گنیتی چاتر، رام کاج کربی کو آتر، ورو چرتر سنبے کو رسیا، رام لکھن سیتا من بسیا، سوشم روپ دھرے سے دکھاوا، وکٹ روپ دھرے لنکی جرا۔ میں تھوڑا سا اس کے آگے تھوڑا سا لیرکس ہو جائیں گے تو میں ڈونٹ وانٹ ٹو میں یہ چیز اس میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں ایک والمیکی پریوار سے بلانگ کرتی ہوں، جس کو دلت کمیونٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہم دلت کمیونٹی سے ہیں۔ تو وہاں پہ کالی کا بکرا ہمارے گھر میں ہوتا تھا، کہ کالی جو کچھ ان میں مطلب مجھے ورڈ I'm not getting that word on my وہ جیسے اس کو بلی کہہ سکتے ہیں، ہاں جی بلی ایک طریقے سے چڑھاتے ہیں ان کو، تو وہ کالی کا بکرا ہوتا ہے جو چڑھانا پڑتا ہے، اس کو گھر میں ہم کاٹتے ہیں، اس کی پوجا باقاعدہ ہوتی ہے، باقی اس کو بانٹ دیا آس پاس میں، یا خود کھا لیا، اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ ایسا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ برہمن لوگ ہیں جو اس طریقے کی کوئی نہ کوئی بات رکھتے ہیں کہ بالکل ہی الاؤڈ نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کھاتے تو ہے ہی۔ تو میں نے جو دیکھا ہمارے یہاں پہ سور، اور ہمارے یہاں پہ جس کی کیٹیگریز بھی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں اس کا نام کمیونٹی کا لے دیتی ہوں، جیسے ایک کھٹیک نام سے ایک ہوتی ہے کمیونٹی، ہم حالانکہ کھٹیک نہیں تھے، لیکن ہمارے پڑوس میں کھٹیک لوگ رہتے تھے جو تو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سور کھٹیک ہوتا ہے، ایک بکرا کھٹیک ہوتے ہیں، تو اور وہ ہندو ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ظاہر یہ سچ ہے کہ مطلب میٹ ماس یہ سب کھانا ہے، ہندوازم میں کھاتے ہیں۔ تو جو بکرا کھٹیک ہے وہ بکرا کاٹنا کھانا یہ سب ان کا رہتا ہے، سور کھٹیک جو ہے وہ سور کاٹنا کھانا ایسا رہتا ہے۔ اس طریقے کے ہم کھٹیک نہیں ہے، لیکن ہمارے میں کھایا جاتا تھا، ایسا ہے۔ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو والمیکی لوگ ہیں، پہلی بات تو میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں، جو ہمارا جیسے سرنیم ہوتا ہے ہر ایک انڈیویجول کا، ایک پورے خاندان کا سرنیم ہوتا ہے، تو ہمارے میرے جو فادر ہے، پاپا ہے، وہ اپنا سرنیم یوز ہی نہیں کرتے ہیں، ایون مطلب آج تک تھوڑا وہ یوز کر لیتے ہیں اپنے سوشل میڈیاز وغیرہ پہ، لیکن وہ پہلے یوز ہی نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ وہ یہی بولتے تھے کہ سرنیم سے کیونکہ سسٹر ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جو ہے کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ سو ٹو ہائڈ دیٹ میرے پاپا کیا کرتے تھے کہ
अपना सरनेम ही हाइड करते थे, और इसी के कारण मेरे भी जितने भी आईडीज़ हैं आज तक उसमें सरनेम ही मेंशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम हाइड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर सरनेम देखा लोगों को पता चलेगा ये वाल्मीकि है तो ये फिर उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब इनको ट्रीट कैसे करना है। अब मुझे एक्चुअली एक कहते हैं ना कि हम कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील करते हैं, तो मेरे साथ ऐसा था। मैं कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं एक पिछड़ा हुआ महसूस करती थी, क्योंकि मैं अपने खानदान की पहचान सामने नहीं रख पा रही हूँ। जो मेरी आइडेंटिटी है, जो जिस घराने से मैं आ रही हूँ, वो दिखाने में मैं शर्मा रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं वाल्मीकि कास्ट से बिलोंग करती हूँ। और उस चीज़ से बचने के लिए कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेरे साथ लोग एक अलग सा व्यवहार ना करें, अलग तरीके से बात ना करें, या फिर मेरे साथ बैठने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिचके, या फिर एक एटीट्यूड शो करें कि देखो हम तुमसे तो बात नहीं करेंगे, इस तरीके की चीज़ें ना हो, उससे बचने के लिए मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रही हूँ। ये मेरे लिए शर्मनाक बात थी और दुख की बात भी थी। ये होता है कि क्योंकि सरनेम हाइड करने की वजह ये है कि जॉब पे भी मतलब ये ना पता चल सके कि हम वाल्मीकि है, तो उसके कारण ही कहीं ना कहीं आप यकीन कीजिए इंटरव्यू जो हम देते हैं जॉब के लिए, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए जो इंटरव्यू ले रहा है वो अगर ब्राह्मण है या ऊंची कास्ट का, जैसे अगर वो है हमसे, तो कहीं ना कहीं आप यकीन कीजिए ये देखा जाता है कि अगर उसको ये पता चल जाए, अगर हम यूज़ कर लें, और ऐसे हुआ भी था मेरे साथ। मैंने एक्चुअली जॉब भी की थी, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको डिस्क्लोज़ कर दिया था, मैंने अपने सरनेम को डिस्क्लोज़ कर दिया था कि क्योंकि वो जानना चाह रहे थे, मांग रहे थे इस चीज़ को। तो जैसे ही मैंने डिस्क्लोज़ किया और उन्होंने मुझसे 1-2 सवाल पूछे कुछ पर्सनल सवाल, जिससे और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं हिंट लेना चाह रहे थे कि मैं ताल्लुकात खास से रखती हूँ किस कम्युनिटी से। तो आई थिंक दे गॉट टू नो कि मैं उनको पता चल गया कि मैं किस कम्युनिटी से ताल्लुकात रखती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे वो जॉब इंटरव्यू में भी मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि उनकी लैंग्वेज मेरे से बात करने की अब तब्दील हो रही है। कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड में, कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी दिखाने में, एक अपने आप को बड़ा दिखाने में तब्दील हो रही थी, बदल रही थी। ये मैंने महसूस की। ये रही जॉब इंटरव्यू की बात। दूसरी चीज़ जो मेरे घर में हुई वो मैं देखती होंगी, जैसे अभी जो कास्ट होती है इनमें मतलब ये इंटर कास्ट मैरिजेस जो है ये हो नहीं सकती। जैसे अगर मैं दलित हूँ तो मैं वो जो मेरे से ऊंची कास्ट के लोग हैं जो मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। अगर मैं हिंदू हूँ तो जो जैसे कोई यात्रा वगैरह करनी है तो वहाँ पे तो जा सकते हैं, कि वो वैष्णो देवी जैसे हो गया यात्रा की, तो वहाँ पे चले तो जाते हैं। ऐसा कुछ भेदभाव मुझे वहाँ पे नहीं लगा। लेकिन ये कि जो और ये जो छोटे मोटे मंदिर है इसमें भी कहीं ना कहीं एंट्री मैं इतनी मतलब करी, लेकिन इतना मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इतना करी जाती नहीं थी। अब छोटी भी थी तो मैं इतना याद मैं इसको नहीं कर पा रही। मैं इसको ये इसी शुरू करती हूँ। तो जैसे मैंने आपको सबको बताया कि मेरा जो जन्म है वो हिंदू परिवार में हुआ था, और मेरे भाई बहन नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स की मैं एक अकेले ही औलाद हूँ। और जब मेरी 7 साल की जब मेरी उम्र हुई तो तब मेरे मम्मी पापा है वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। मतलब तलाक नहीं हुआ, ना आज तक हुआ है, बट दे आर सेपरेटेड, वो अलग है। उसके बाद एक नॉर्मल सी बात है, दिमागी रूप से मेरे ऊपर बहुत बुरा असर होने लगा था, क्योंकि जो एक पापा की जो तलब होती है, एक ज़रूरत होती है, और ख़ास करके डॉटर को, बेटी को, वो कहीं ना कहीं पूरी जब नहीं होती तो एक लड़की इनसिक्योर होती है, डरती है। और आजकल का जो समाज है जो कि बहुत अनसेफ है, वो आप समझते हैं फिर ये कितना बड़ा एक थ्रेट है एक लड़की के लिए कि उसके पापा उसके साथ नहीं है। और पापा के ना होने की उस कमी से मुझे सबसे ज़्यादा अकेलापन होने लगा, और मैं अपना मजबूर पे ना कहीं अकेला समझने पर मजबूर हो गई थी। तो उस कमी से एक इनसिक्योरिटी के साथ मैं बड़ी हुई कि उसमें जब 7 साल की हुई तो उसके बाद मेरी मॉम ने कैसे करके कभी जॉब करके किसी तरीके से मुझे पाला। उन्होंने आज तक ऐसा बड़ा किया। और तो घर में मेरी मॉम करती थी, घर में हमने भी मूर्ति लगा रखी थी, फोटोज लगा रखी थी, हम पूजा वगैरह करते थे, हनुमान चालीसा मेरी मम्मी रोज़ पढ़ती थी। इस तरीके से था। फिर मैं सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था, मैं अगर मैं बोलूँ कि वो क्वेश्चन क्या था जो मेरे माइंड में सबसे पहले आया हिंदुज़म के रिगार्डिंग, जो मेरे फेथ पर क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दी। एक सबसे बड़ा सवाल यही था कि मतलब जिस खुदा को, जिस भगवान को मैं देख नहीं सकती, मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से बहुत मेंटली परेशान चल रही थी। तो मैं जैसे सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, तो मैं छत पर गई सुबह और मैं सूर्य को जल चढ़ा रही थी, ये मैं कर रही थी। लेकिन जब मैं नीचे आई, वापस आई, तो मैंने एक चीज़ सोची कि मैं उस सूरज की तरफ आँख उठा के मतलब ठीक से गौर करके देख नहीं पा रही, क्योंकि उसमें इतनी चमक है। तो इसको बनाने वाला वो कैसा होगा?
फिर जब मैं नीचे आई अपने कमरे में आई, मैंने अपनी दीवार की तरफ देखा कि फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, कुछ माताओं की, गणेश जी की, हनुमान जी की, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ और कैलेंडर्स वगैरह लगी हुई हैं जिसमें फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो मेरा खुद से एक सवाल कहीं ना कहीं दिल में उठा एकदम से, कि जब मैं सूरज की तरफ जो कि खुदा की बनाई हुई है मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं खुदा को इमेजिन भी कैसे कर सकती हूँ कि मैंने उसकी एक तस्वीर बना दी। ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसने मेरे को मेरे हिंदू फेथ को क्वेश्चन करने पे फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार मजबूर कर दिया। वो एक दिन था जहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया कि नहीं, कुछ है जो कि मैं मिस कर रही हूँ, कुछ है जो कि बाकी है जानना। ये मेरे मन के अंदर आ गया, ऐसे हो गया। इस चीज़ को मैं समझ भी हूँ। फिर मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन, मेरी एक होता है ना तहकीक करने का जो कीड़ा होता है, वो मुझे दे गया कि नहीं, तहकीक तो करनी पड़ेगी, कुछ गड़बड़ ज़रूर है यहाँ पे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। तो ऐसे हुआ था कि जैसे मेरे मम डैड अभी सेपरेट है, मेरी मम और मैं अपने पापा से सेपरेट है, मैं सेपरेट हूँ पापा से। तो फिर जो भी मेरा पापा से मिलना हुआ वो कोर्ट मेरे मम डैड का कोर्ट केस भी है, तो कोर्ट में मेरे पापा से जो भी मिलना हुआ वो वहीं पर ही हुआ। तो बहुत ज़्यादा एक मेंटली कोई ना कोई परेशान भी थी। तो जब इंसान जब बहुत अकेला पड़ जाता है, क्योंकि इस इंसिडेंट ने मेरे को एक सेंस ऑफ लोनलीनेस मेरे दिल में, मेरी ज़िंदगी में छोड़ दिया था। तो मैं शायद किसी एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे उसकी तलाश में थी शायद से, कहीं ना कहीं जो मुझे सुकून दे सके, जिसके साथ मैं अकेली हूँ तो मैं बात कर सकूँ, या फिर मैं बड़ी दुनिया में भी अगर चल रही हूँ तो कोई मेरे दिल में ऐसा हो बसा हुआ जिसको लेकर के मैं सोचूं और मेरे को सुकून मिल जाए। शायद मैं उस सुकून की तलाश में थी इस अकेलेपन के कारण। फिर मुझे कहीं ना कहीं एक तलाश करने की, वो जैसे मैंने बताया कीड़ा मेरे अंदर वो छूट गया, तो वो फिर शुरू हुआ है। मुझे याद है कि मैं एक जगह का नाम नहीं लूँगी, एक टूरिस्ट मॉस्क है, वहाँ पर मैं गई। तो ऐसे घूमने फिरने के लिए, हैंग आउट के लिए मैं थोड़ा सा गई हुई थी। तो कि जब मैं बैठी हुई थी तो एकदम से वहाँ पे अजान शुरू हो गई। जब वो अजान शुरू हुई मुझे उसका एक शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बैठ के इतना रोई हूँ एज अ क्रिश्चियन, उस टाइम क्रिश्चियन थी, इतना रोई हूँ सो मैं आपको क्या बताऊँ। दिल को जैसे सुकून मिल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मुझे बुला रहा है, कोई मुझको ऐसा लग रहा था कि बुला रहा था मुझे। अजान सुन के ऐसा लग रहा था समझ। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ये जब इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे इस्लाम पे थोड़ी स्टडी करने की ज़रूरत है। तो मैंने जब वुमेन राइट्स पे थोड़ी सी स्टडी करी, एक वाइफ के क्या राइट होते हैं, तो मेरे को ये चीज़ पता चली कि अगर हम मुसलमान होते तो मेरे पापा अगर दूसरी शादी करते भी तो भी हमारे साथ ये सब नहीं होता, हमें मेंटेनेंस भी मिलता, हमें सब मिलता, घर भी लेके देना पड़ता रहने के लिए, एक बसेरा, एक सर पे छत देनी पड़ती उस आदमी को रहने के लिए। लेकिन जब मैंने देखा कि हिंदू होने के नाते ये सब हो रहा है, तो जब मैंने इस्लाम को स्टडी करा, मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं सुकून, मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे प्राप्त हुआ। मुझे ऐसा मिल गया कि नहीं, ये एक रिलीजन है जिसने औरत के बारे में सही से तरीके से बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्राइब करते हुए सोचा है, ये एक अकेला ऐसा रिलीजन है। तो अब मैं इसमें ये तो मैं मतलब कहना चाहूँगी कि ये जब मैंने देखा कि अगर मैंने इस लॉ को एक कंपैरिजन किया, मैंने देखा कि अगर इस्लाम पूरी तरीके से यहाँ पे होता तो ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होती। मैं जो शरिया जो लॉ इस्लाम हमारे को प्रेजेंट करता है, मैं उसकी कीमत समझी। मैंने देखा कि नहीं, इसको दिखाया गलत पे है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया स्प्रेड करने के लिए, लेकिन इसकी जो ज़रूरत है वो एक औरत को जिस दिन पता चलेगी, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम औरतें मुसलमान हो जाएंगी। मैं इसमें एक चीज़ मतलब कहना चाह रही कि लोग कहते हैं कि मतलब इस्लाम जो है यहाँ पे मतलब खुदा को कितना डरा करके तुम्हारे को रखता है, मेरा खौफ करो, मेरे से डरो। उनको ये पता ही नहीं है कि वो डरने के लिए क्यों बोल रहे। खुदा का खौफ है तभी तो मुसलमान अपनी सारी बीवियों को सही से रखेगा। एक जो हिंदुज़म है वहाँ पे खुदा के खौफ का कोई वो नहीं है, वो इस भी तरफ प्रेशराइज नहीं किया गया इस कॉन्सेप्ट पे। यही तो वजह है कि आज हमारे साथ वैसा हो गया एज ए हिंदू। खुदा के खौफ की ज़रूरत क्यों है, ये मेरी स्टोरी सुन के जिसको दिमाग है वो समझ जाएंगे कि खुदा के खौफ की ज़रूरत क्यों है।
क्योंकि हिंदुइज्म में खुदा ने कोई लॉ दिया ही नहीं। खुदा ने अगर लॉ दिया, कोई लॉ मिलता। क्रिश्चियनिटी में भी कोई लॉ नहीं है। जिस हिसाब से क्रिश्चियनिटी फॉलो हो रही है, अगर कोई लॉ मिले तो को खुदा की तरफ से मिले तो उसमें हम से भी बिलीव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कैसे बिलीव करें, वहाँ पे लॉ ही नहीं है। औरत के साथ जब ऐसे इंसिडेंट होंगे तो वो ना ही रिलीजियस तरीके से लड़ सकती है, और जो दुनिया ने जो कानून बनाया है उसमें इतने लूप होल है। वो जो फिर जो हाल होता है, मैं सामने खड़ी हूँ ऑडियंस के आज सामने हाजिर हूँ। उसके बाद एक्चुअली ये थोड़ा सा मैंने बहुत आगे का बता दिया था जब मेरे इस्लाम, क्योंकि उसके बाद तो फिर मेरी इस्लाम में स्टडी होने की जर्नी शुरू हो जाती है। तो मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ कि जब इन्होंने फिर जो मैं भी जो वो स्टोरी बता रही थी कि हिंदुइज्म से कैसे मैं क्वेश्चन करने लगी, फिर उसके बाद मैं सवाल शुरू करती कि क्रिश्चियनिटी से कैसे मेरा वो ताल्लुकात शुरू हो गई मेरी। तो ऐसा फिर हुआ कि मेरे को हिंदुइज्म पे फिर क्वेश्चन आया कि मतलब मैं मेरी औकात नहीं है कि मैं खुदा को कोई शक्ल दे सकूँ। तो फिर वो सवाल खड़ा हुआ। फिर उसके बाद एक को मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरे को अनीमिया हो गया, खून की कमी जिसको कहते हैं। मुझे खून की कमी हो गई थी, और जब मैं उस टाइम में 9th क्लास में थी, 9th स्टैंडर्ड में मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मुझे अनीमिया हो गया। और डॉक्टर ने मेरे को फिर कह दिया कि क्योंकि सारी प्लेटलेट्स जो है वो गिर रही हैं, तो कि मैं जब बैठती थी क्लास रूम में तो मेरे को ब्लैक बोर्ड धुंधला दिखता था। मेरी आई साइड भी उस पर वो फर्क कर रहा था, खून की कमी जो है अनीमिया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि 1 साल का गैप दे दो, पढ़ाई कोई ऐसी हेल्थ से बड़ी नहीं है, 1 साल का गैप दे दो, फिर स्कूल चली जाना। तो फिर उसके कारण मैंने ड्रॉप आउट किया अपने 9 से, मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। तो इसके दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब मेरे को खून की कमी हुई, अब मैं इस पर श्योर नहीं हूँ कि अब ये खून की कमी ही एक्चुअल में थी या फिर ये कुछ इविल स्पिरिट के ये कुछ अटैक्स थे, या ये डिप्रेशन था। मैं इसको कुछ नाम नहीं दे सकती, मैं इसको बस बयान करूँगी। ऑडियंस इस चीज़ को थोड़ा सोच सकती है कि वो क्या हो सकता है। तो मेरे साथ क्या होता था कि खून की कमी हुई पूरा, फिर मैं स्कूल छोड़ा, दवाइयों पे दवाइयाँ ले रही हूँ तीनों टाइम की जितनी भी होती हैं दिन में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को कुछ ऐसा होता था कि रात में बहुत बुरे बुरे सपने आना, और ऐसा लगता था कि जैसे मुझे किसी ने कोई जकड़ लिया है, इस तरीके की चीज़ें होती थी। और मतलब ऐसा मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि जब मैं शीशे के सामने जब मैं खड़ी हुई थी तो मेरे को सुसाइडल थॉट्स मेरे को आते थे, और मैंने बहुत बड़ा मेरे हाथ में एक छुरा था मेरे हाथ में, और मैं शीशे के सामने खड़े होकर मैं सोच रही थी कि मैं इसको अपने पेट में घुसा लूँ। ऐसा मेरे साथ हो रहा था, मैं सुसाइड करना चाह रही थी, क्योंकि वो चीज़ ऐसी हो रही थी कि मेरे माइंड में ऐसा लगता था कि वो चीज़ है जो कि मेरे को मजबूर कर रही है सुसाइड की तरफ। ऐसा थॉट्स आ रहे थे क्योंकि जब पापा से जो सेपरेशन हुआ, फिर जो घर में रह रहे कि जो अकेलापन जो हो रहा था, उससे कहीं ना कहीं मुझे अकेलेपन से लगता है कि डिप्रेशन मेरे ऊपर हावी हो गया। एक सीवियर डिप्रेशन का उसने रूप लिया जो मुझे सुसाइड की तरफ धकेल रहा था। जब ऐसा बहुत कुछ होने लगा, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो मेरे मॉम जो है उन्होंने क्या किया कि मेरे मॉम का किसी क्रिश्चियन कोई लेडी थे, वो सिस्टर थे, उनसे मेरी मम्मी का मिलना हुआ। अब क्रिश्चियन जो वो लेडी थे वो साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ा हुआ था, स्टडी किया हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मी ने क्या किया कि बातों बातों में अब मेरा बयान कर दिया कि मेरी बेटी है, उसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, जब उसने स्कूल छोड़ा है और बहुत अकेलापन महसूस करती है, पापा ने जो भी किया उसको लेकर के रोती है, रातों भर उसको बुरे सपने आते हैं, कोई उस वैसा लगता है कि जकड़ रहा है, और पूरे दिन उसको हंसी नहीं आती, जैसे हंसना भूल गई है वो, ऐसा उसके साथ हो गया है। ये मेरी मॉम ने एक हिंदू होने के बावजूद एक क्रिश्चियन से मेरी मम्मी ने रिक्वेस्ट रखी, तो वो जो सिस्टर है उन्होंने बोला ठीक है मैं आपके घर आऊँगी और यशवी से मैं मिलूँगी। तो वो सिस्टर मेरे घर पर आए और उन्होंने मेरे से ज़्यादा पूछा, उन्होंने मेरे से बात नहीं की, बस उन्होंने कहा मेरे को कि ओके यशवी मैं तुमसे बात की, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो वगैरह। उन्होंने मेरे को सारिश की और उन्होंने कहा कि हम घूमने चलेंगी, हम एक दिन हम घूमने चलते। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो हाँ बड़ी की ठीक है, आप मुझे घूमने ले जाना चाहते हैं, मैं चलूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो मुझे चर्च लेके जाएंगी। तो फिर उसके बाद ये होता है, फिर वो मुझे एक सेंस जब अपकमिंग जो संडे था उसमें उन्होंने बोला कि हम घूमने चलते, तो वो संडे का दिन उन्होंने चूज़ किया क्योंकि ऑब्वियसली चर्चेस में जो वर्शिप होती है वो संडे के दिन होती है, और उन्होंने संडे मुझे लेकर के गए। तो पहले जब मैं वहाँ पे गई तो पहले मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जब रास्ते में जो हम जा रहे थे ना, उन्होंने बोला कि मैं तुमको असल में एक NGO लेके जा रही हूँ जहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जो कि जिनको शेल्टर की ज़रूरत है, और उसके ऊपर एक शेल्टर होम मतलब NGO है, शेल्टर होम भी आप उसको कह सकते हो, यशवी। तो मैं मामा लेके जा रही, तो मुझे उनकी स्टोरी सुनोगे तो तुमको अच्छा लगेगा, तुमको रियलाइज़ होगा कि तुम कितनी ब्लेस्ड हो। रास्ते में
फिर जब हम चर्च में जब एंटर हुए तो चर्च को सिस्टर इस तरीके से बना हुआ था कि वो बाहर से ना पता नहीं चल रहा था कि चर्च है, मतलब बाहर कोई चर्च का बोर्ड नहीं लगा हुआ था। वो एक बिल्डिंग के अंदर एक बड़े से हॉल को उन्होंने चर्च बनाया हुआ था, इस तरीके से था। लेकिन जब हम चढ़े वहाँ पे ऊपर जब गए तो फिर जब मैं वहाँ पे गई तो इतना कुछ मतलब समझ नहीं आया कि वहाँ पे यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर पहले मुझे हाँ जी, उसके बाद में धीरे धीरे समझ आया कि चर्च जो है मतलब ये चर्च है और ये चर्च ही सब वो ऐसे होती। अब कहाँ से सिस्टर, कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, ऐसे पूछ के सबने थाली बताई, वेलकम किया। फिर मैं बैठ गई वहाँ पे। फिर जो भी फिर वो कुछ सॉन्ग्स गा रहे थे इसमें थोड़ा सा मेरे को थोड़ी सी स्टोरी लगी, लेकिन मैं स्टिल इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं इस बात को मानती हूँ कि मेरे यहाँ पे एक गलती थी जो कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। अगर मैं इस गलती पे थोड़ा सा अमल करती और सही इसको करने की कोशिश करती तो शायद मैं क्रिश्चियनिटी को पढ़ती लेकिन एक्सेप्ट ना करती, और विदाउट एक्सेप्टिंग द क्रिश्चियनिटी मैं क्या करती, मैं सीधा इस्लाम पे आ जाती। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसमें डील दी। तो मैं इसको बयान करती हूँ अभी। हुआ ऐसा कि जब वो मुझे चर्च लेके गई सिस्टर, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे पहले तो समझ ही नहीं आया कि चर्च है यहाँ पे वर्शिप हो रही है या फिर कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे, पहले ये समझ नहीं आया। फिर जब वो जो 2 घंटे जब पूरे हुए तो फिर जब हम वो चर्च का जो वर्शिप टाइम खत्म हुआ तो हम घर आने लगे वापस। तो उन सिस्टर ने क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी बाइबल होती है जो कि क्योंकि बाइबल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक न्यू टेस्टामेंट मेरे हाथ में पकड़ाया। उन्होंने बोला मेरे को कि इसको ना दिन में 5-5 पेज पढ़ता पढ़ना, ये बोला मुझे बस। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं इसको रीड करूँगी। तो फिर ऐसे ही मैं घर आ गई। मैंने बोला, फिर उन्होंने बोला कि तुमको अच्छा लगा, कैसा लगा, क्योंकि हम यंग होते उस टाइम तो जब जैसे म्यूज़िक बज रहा है या फिर गिटार यूज़ हो रहा है तो भाई ना थे उस लिहाज से अच्छा लगा, लेकिन चर्च था ये तो पता ही नहीं चला। और फिर उन्होंने बोला कि अब तो मैंने कहा कि हाँ सिस्टर मुझे यहाँ पे अच्छा लगा नहीं, तो मैं बोला ठीक है यहाँ पे हम हर संडे करेंगे अब। तो मैंने कहा ठीक है सिस्टर मैं आऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम मैं थोड़ी डिप्रेशन की पिल भी खा रही थी। घर में पड़े मेरा दिमाग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा था, सुसाइडल थॉट्स थे, अटेम्प्ट भी किया था कहीं ना कहीं। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं मैं थोड़ा सा घुलूंगी मिलूंगी तो मेरा माइंड कहीं ना कहीं शायद ठीक हो जाए। तो मैंने उसको इस तरीके से लिया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं संडे ऐसे करूँगी, क्या पता मेरा माइंड इसी चलते थोड़ा सा ठीक हो जाए, मतलब मेरा जो मन उदास रहता है वगैरह वगैरह। तो मैंने ये सोची उनको हामी भर दी, मैं आ गई, मैं हर संडे फिर आने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जाते तो हम हर संडे थे, लेकिन वो सिस्टर मेरे घर हर दिन आने लगी। मुझसे सब मेरे घर हर दिन आते थे और फिर उसके बाद में से तरह तरह की बातें करना और हंसी मजाक करना वगैरह। उन्होंने मुझे एक अच्छी दोस्त जैसा बना लिया। और उस टाइम क्योंकि मैं बहुत अकेली पड़ गई थी तो उनमें मुझे कहीं ना कहीं बेस्ट फ्रेंड दिखने लग गया उन सिस्टर में। तो मैं उनको मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसा मुझे कहीं ना कहीं में दिखने लग गया। तो ऐसी फिर बातें बढ़ी, फिर धीरे धीरे हर संडे जाने लगे। फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे इस चीज़ को डिस्क्लोज किया कि यशवी देखो अब ध्यान से सुनो, ये जो बुक मैंने तुमको दी है इसको कहते हैं नया नियम, यानी कि बाइबल का एक हिस्सा है, एक ये जिसको मैंने तुम्हें दिया है। और जो बाइबल है वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन की एक किताब है। उन्होंने मुझे डिस्क्लोज किया। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ अब देखो, और जो जहाँ हम जाते वो एक चर्च है, वहाँ पे हमको जाके इबादत करते हैं इस तरीके से। और बाकी जो फिर उसके बाद क्योंकि जब वो वर्शिप हो जाती है सॉन्ग्स के साथ, फिर उसके बाद पास्टर कुछ बोलने भी आते हैं ना, प्रीचिंग वगैरह करते हैं बाइबल वर्सेस के साथ, तो वो भी होता था। अब एक्चुअली ऑडियंस कहीं ना कहीं ये ना सोचे कि मतलब मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोला कि वहाँ पे सिर्फ सॉन्ग भी चलते थे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ सॉन्ग नहीं होते थे, सिर्फ वर्शिप नहीं होती थी, वहाँ पे ये भी होता था, प्रीचिंग भी होती थी। वो बात अलग है कि क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी से इतना मैं मतलब वो नहीं थी, मिली हुई नहीं थी इतनी ज़्यादा, मतलब घुली मिली नहीं थी, मुझे इतना नहीं पता था। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि पास्टर एक्चुअली बाइबल प्रीच कर रहे हैं जो कि एक रिलीजन है अपने आप में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। तो कहीं ऑडियंस ये ना सोचे ना कि मतलब मैं इस चीज़ को क्यों नहीं वो कर रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि वो प्रीचिंग कर रहे हैं बाइबल से जो कि एक रिलीजन है पूरा का पूरा। तो फिर वो सिस्टर ने मुझे डिस्क्लोज करा कि ये एक रिलीजन है जिसको हम फॉलो करते हैं, और देखो तुम्हें अब जैसे जैसे तुम खुश रहने लगी हो, अब तुम्हें और भी खुशी मिलने लगेगी, हम सारे तुम्हारे दोस्त हैं, तुम ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगी।
और जिस तरीके से जैसे सॉन्ग वगैरह गाते हैं वर्शिप में, एक दिन तुम गिटार भी सीख जाना, तुम भी गाना एक दिन, इस तरीके से मेरे को वो किया। अब सीधी सी बात है, जो यंगस्टर है, अब आप फिर उसमें मैं क्या एक्सप्लेन भी ना करूँ तो शायद चलेगा, क्योंकि ऑडियंस भी समझ रही कि कोई यंग बंदा है, यंग लड़की है, अब वो एक वक्त डिप्रेशन में उसको एक ऐसा एक्सपोजर मिल जाए तो वो भी सोचेगा कि नहीं यार मैं इसमें जाती हूँ तो कहीं ना कहीं शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। धीरे 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 मेरा उससे फिर एक कनेक्शन सा बन गया। तो फिर वो मेरे को छोटी छोटी चीज़ें बताती थी बाइबल में से, ये देखो यीशु मसीह का ये वाला इंसिडेंट सुनो, तो फिर ये वाला इंसिडेंट बताती हूँ, बाइबल खोलो देखो ये वाला इंसिडेंट है, इसमें देखो इस यीशु मसीह ने ऐसे इंसानियत दिखाई, ऐसे किया वो किया, तो जो यीशु मसीह है वो तुम्हारे साथ भी है और वो तुमको बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है यीशु मसीह तुमको। इस तरीके से मेरे को बहुत प्रीच किया। 2-3 महीने जब हो गए मुझे वहीं पे जाते जाते उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाते फिर एक वक्त आ गया जब उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया बैप्टिज्म, बपतिस्मा, ये एक रिचुअल है और बैप्टिज्म का मतलब है, मतलब वो लिया उसका मतलब है ये कि डिक्लेरेशन ऑफ फेथ इन क्राइस्ट, यानी कि हम ये ऐलान करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, अनाउंस करते हैं कि आज से हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, यानी फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट मीन्स क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। तो उन्होंने मेरे को पहले तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उन्होंने मुझे उसके कुछ फ़ायदे बताए कि जब तुम बपतिस्मा, हाँ जैसे मतलब तुम ले लोगे तो तुम ऐसे मतलब बहुत सारे अपने पापों से रिपेंट करते हैं, अपने तौबा करते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं कि हम से यीशु मसीह को मानते हैं। क्योंकि जो धीरे धीरे जब मेरा उनसे तारुफ अच्छे से हुआ था, बढ़ा था, कनेक्शन हुआ था, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं यीशु मसीह एक रोल मॉडल, एक आइडियल, एक ऐसे लगने लगे कि मैं इनको फॉलो करना चाहती हूँ। तो जब उन्होंने बोला कि बैप्टिज्म का मतलब यही है, मैंने कहा, मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा तहकीक मैंने ज़्यादा नहीं की, मैंने कहा कि ठीक है मैं ये लूँगी, बैप्टिज्म में लूँगी। तो फिर सिस्टर मैंने बैप्टिज्म भी लिया, मैंने बैप्टिज्म की बात की पास्टर से चर्च में, उन्होंने मुझे बैप्टिज्म भी दिया। ऐसे ही फिर हुआ। फिर उसके बाद मैं, क्योंकि मैं इस टाइम में कहीं ना कहीं वो मुझे कॉन्फिडेंट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी को लेकर कि क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी है, इसमें इंसानियत की बात है, इसमें औरत के लिए बात है, ये सारी चीज़ें वगैरह। लेकिन वो गलती ये थी कि उन्होंने, और देखिए उनकी ट्रिक ये थी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ मुझे न्यू टेस्टामेंट पकड़ाया है, जबकि बाइबल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। उसका एक दूसरा नाम है, उसका एक पहले 2 हिस्सा है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। उन्होंने मुझे ओल्ड टेस्टामेंट नहीं दिया, तो मुझे ओल्ड टेस्टामेंट देते तो मुझे समझ में आता कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब मुझे जो मेरा जो सवाल था, जो इस्लाम ने क्लियर किया, वो सवाल ही ओल्ड टेस्टामेंट में से था। अगर मैं उस सवाल को पहले जान जाती, पहले अगर मेरे दिमाग में वो कर जाता, तो फिर क्या होता कि मतलब मैं पकड़ लेती उस चीज़ को, फिर मैं चीज़ से मैं कहीं ना कहीं इस्लाम तक उस वक्त पहुँच जाते। लेकिन जो उन्होंने मुझे दिया तो था न्यू टेस्टामेंट, लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे जहाँ हम रहते थे, हमारे ऊपर जो लोग रहते थे कुछ वो बिहारी लोग थे, उनके पास ना बाइबल रखी हुई थी जिससे मैं ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट दोनों कंबाइन था। जब मैं उनसे शेयर करने लगी कि मैं आजकल चर्च वगैरह जाती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ हमारे पास बाइबल रखी है, तुमको चाहिए? फिर मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा अमेरिका बिल्कुल तो चाहिए मुझे, दे दो। फिर जब मैंने देखा कि इसमें तो ओल्ड टेस्टामेंट मिक्स है, मेरे तो ज़बान नहीं आ रही हो गई, मैं बहुत खुश हो गई। ये वाह, तो मैं खुदा को पूरा जानूंगी, ये वो ऐसे करके। और वही बहुत बड़ी वजह बन गई। एक सवाल मेरे सामने आके खड़ा हुआ जो कि बहुत बड़ी वजह बना मेरे को इस्लाम में इंट्रोड्यूस मेरा होने का। वो उसमें जब मैं बहुत पढ़ती गई तो मेरे को ये मालूमात हुई, ये पता चला मेरे को कि ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिसको वो अब्राहम कहते हैं, पीस बी अपॉन हिम, तो अब उनके स्टोरी ऐसी है, लेकिन उनकी वाइफ थी सारा अलैहिस्सलाम और उनको बच्चा नहीं हो रहा था। उनको बच्चा नहीं हो रहा था। उनकी सारा अलैहिस्सलाम की एक दासी थी, स्लेव थी, जिनका नाम हाजिरा अलैहिस्सलाम था। हाँ, हाजरा है ना, ये आपको मालूम होगा। तो फिर उसी तरीके से फिर वो स्टोरी है, तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि फिर क्योंकि बच्चा सारा अलैहिस्सलाम को नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपनी स्लेव हाजर अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया था कि आप जो बच्चा है वो इनसे कीजिए, ताकि मेरे ऊपर जो एक दाग लगा हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है कि मैं बांझूं, वो मिट जाए, ताकि हमारे पास एक बच्चा आ जाए। हाँ, इस तरीके से हुआ। यह स्टोरी थी। अब बाइबल में अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो फिर हम देखते हैं कि जब वो कोई हंसी, बाइबल में एक वर्ड दिया गया हंसी का, ये वो हंसी करता हुआ मिला, हंसी मजाक कुछ कर रहा था, फिर कुछ कोई बिहेवियर होगा उसका जो कि सारा अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी बाइबल में इस तरीके से है। मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, उनके यहाँ पे बाकायदा पर लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो इस्माइल अलैहिस्सलाम में वो हंसी करते हुए मिले,
अच्छा करते हो। तो फिर सारा अलैहिस्सलाम को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोला कि मतलब मैं मतलब नहीं चाहती मैं कि मतलब ये हमारे जो हमारे घर में ये कोई भी मतलब इनहेरिटेंस ही रखें, इनका कोई भी इनहेरिटेंस हो, इसलिए तुम इसने क्या कीजिए, आप इस हाजर अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को आप भेज दीजिए यहाँ से आप निकाल दीजिए। अब ऐसा होता है कि बाइबल में ऐसा बोला गया कि एंजल्स जो है वो आए, फरिश्ते आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, अब्राहम के पास, और उनको बोला कि जैसा सारा अलैहिस्सलाम तुमसे कह रही है वैसा ही करो। फिर उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में कि वो पानी की कुछ थैली पकड़ाते हैं हाजर अलैहिस्सलाम को, और वो बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके निकल जाती हैं। फिर वो तो जमजम है जो इस्लाम में जिसका जिक्र भी है, जमजम के वहाँ पर वो जाते हैं, इस तरीके से पेड़ के वहाँ पे होते हैं, उनको प्यास लग रही होती है, इस तरीके से कुछ है। तो वो स्टोरी है पूरी की पूरी। तो सिस्टर मैं इसमें मेरे पास, लेकिन हम ये देखते हैं सिस्टर कि जो बाइबल जो हम पूरी पढ़ते रहते हैं आगे, तो हम ये देखते हैं कि जो जैसे अभी हम देखते हैं कि बकरा ईद आने वाली है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो पीछे जो स्टोरी है वो स्टोरी ये कि वो ओके मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम को मतलब कुर्बान करने का उनको हुक्म आया था ना, हम टेस्ट कर रहे थे, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फेथ टेस्ट हो रहा था। तो इस तरीके से फिर लेकिन जब बाइबल को पढ़ते तो बाइबल में वो जो स्टोरी है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसहाक अलैहिस्सलाम के ऊपर लिखी हुई है। माँ पे ये लिखा हुआ है कि इसहाक अलैहिस्सलाम को ले जाया गया माँ पे वो करने के लिए, कुर्बान करने के लिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं। माँ पे उन्होंने बच्चा ही बदला हुआ है कि बच्चा था कौन सा। और माँ पे बार बार बाइबल में मैं ये देख रही थी कि इकलौता उनका इब्राहिम का इकलौता बेटा, ये टाइटल यूज हो रहा है वो इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम था क्या? तो फिर जब इसकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, इसकी स्टडी जब थोड़ी बहुत करी तो पता चला कि बाइबल में इस्माइल अलैहिस्सलाम की स्टोरी को हटाया ही किसी पर्पस से गया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की स्टोरी को हाइड करने का बहुत बड़ा वजह है क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम से ही जो जेन्युइन जिसको कहते हैं वो इस मुस्लिम से शुरू होती है, इस्लाम की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू होती है, उसकी वजह यही है। तो फिर मैं समझती हूँ यार इकलौता बेटा तो नहीं था। इसहाक अलैहिस्सलाम बाद में हुए ना सारा अलैहिस्सलाम को, तो दोनों बेटों को गिना जाए ना। और नाम बिल्कुल मेंशन कर रखा है इसहाक अलैहिस्सलाम को कि इसहाक को वो कुर्बान करने गए माँ पे सुई पर्वत पर। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा मुझे पकड़ में आया कि ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की स्टोरी मेरे से हाइड क्यों करी जा रही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का हुआ क्या? मेरे अंदर ऐसे क्वेश्चन आने लगे जैसे कि वो जो बेटा हुआ जिसको घर से बाहर निकाल दिया गया उसका क्या हुआ। तो ये सवाल जो है ये मेरे को बहुत इजीली, जिसको कहते हैं बहुत इजीली इस्लाम तक आराम से लेकर के आ सकता था, जो कि हुआ भी बहुत इजीली। मुझे इस्लाम तक उस सवाल ने मुझे ला करके खड़ा किया और उसका जवाब बहुत सही से इस्लाम में मिला भी। उसकी वजह मुझे अच्छे से पता चले नहीं, उसको हाइड करने की वजह ही यही है क्योंकि मैं ये स्ट्रिंग के इस रिकॉर्ड के इस इंटरव्यू के द्वारा मैं सभी अगर कोई क्रिश्चियन सुन रहा है तो ना उससे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एज अ क्रिश्चियन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी बाइबल में आपके जो जिसका फादर ऑफ फेथ अब्राहम को आप फादर ऑफ फेथ कहते हो, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके एक बेटा जिसके बारे में जिक्र आगे तक नहीं किया गया बाइबल में, उसके बारे में आप जानो। ये एज अ क्रिश्चियन पता नहीं क्यों आप इसको नियर नहीं समझते। एज अ क्रिश्चियन मुझे ये बात लगने लगी कि नहीं कुछ गड़बड़ है और कुछ चीज़ है जो कि मुझे जाननी चाहिए इनके बारे में। कई हुआ मैंने फिर क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं एकदम से तो नहीं हट सकती है किसी फेथ से अगर मैं गई हूँ तो मैं पास्टर से मैंने कभी पूछने की कोशिश की। सो उनका जो कहना रहता है, मैंने पास्टर से या फुल बाइबल स्कॉलर्स रहते हैं उनसे पूछने की कोशिश की और एक्चुअली जो सिस्टर मुझे जॉर्ज तक लेकर गई थी वो खुद बाइबल स्कॉलर थे एक्चुअली। तो मतलब उनसे मैंने पूछने की कोशिश की तो वो बोलते हैं कि मतलब जो गॉड की जो प्लानिंग थी ना, जो प्लानिंग है ये मतलब जीसस को इसको लाने की वो इसहाक अलैहिस्सलाम से ये, और जो इस्माइल है वो ब्लेस्ड सन नहीं है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, क्योंकि जिस बेटे का प्रॉमिस किया गया था अब्राहम पीस के अपॉन को वो सिर्फ और सिर्फ इसहाक का किया था, इस्माइल का नहीं किया था। इस्माइल तो सारा अलैहिस्सलाम की जल्दबाजी की वजह से हुए थे, मतलब जल्दबाजी की वजह से हुए, तो वो उनके बेटे ही नहीं है, मतलब और बेटे है तो ब्लेस्ड बेटे नहीं है, ब्लेस्ड बेटे सिर्फ इसहाक है। ये की क्या बात हुई? तो यहाँ पे मेरे को कोई चीज़ खटक देगी नहीं, कोई चीज़ है जो कि पार्शियलिटी दिखा रहा है। अब ये जब इस स्टोरी में तुम रही थी ना देख रही थी
پھر ماں کو بتاتے اسی چیز پہ جاتے جب میرے ساتھ ہوا کہ جب میرے پاپا نے ایسے تھریٹس وغیرہ دیے، ان کی دوسری وائف نے مجھے سب بولا گندی چیزیں وغیرہ. تو جب میں نے اپنا بہت اکیلا پایا اور دیکھا کہ میرے کو میری موم کو بھی مطلب ایسے ہی ایک اکیلا سا کر دیا گیا، میں نے اپنے آپ میں نہ کہیں میں یہ دیکھ پا رہی تھی کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو کہیں نہ کہیں امیجن کر رہی تھی، ان کی اسٹوری امیجن کر رہی تھی کہ مطلب کیسے جب ان کی ضرورت تھی ان کو تب ان کو مطلب وہاں پہ تو رکھا گیا، لیکن پھر ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور بلیسڈ سن کا نام نہیں ان کے اوپر ہے. تو میں نے اپنے آپ کو پہلے ریلیٹ کیا اس چیز سے. وہ ایک بلائے رہے بیٹے فارگوٹن سن جسے کہیں گے، وہ ایک بلائے رہے بیٹے بندے جس کو میں نے اپنے اوپر اپلائی کر کے بہت ڈیپلی سمجھ لیا کہ نہیں میں اپنے آپ کو اس سے جوڑ پا رہی ہوں یہاں پہ اس مومنٹ پر. مجھے سمجھے پھر ان مینیپولیشن سے نا میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی. پھر میں نے ایک فیصلہ لیا آخر میں کہ اب میں نا چرچ نہیں جاؤں گی، میں کرسچن رہوں گی بٹ میں چرچ نہیں جاؤں گی کبھی بھی. کیونکہ جب میں کرسچن جب اس چیز میں آئی تھی بنی تھی تو میری موم جو ہے وہ ہندو ہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے جب میں نے ان کو بھی سمجھایا تو وہ بھی کرسچینٹی سے پھر وہ ہو گیا ٹریک ہو گئی، پھر وہ بھی آج وہ کرسچن ہی ہے. اور پھر میری ممی اس ٹائم کرسچن بن چکی تھی تو میں اس بات پر واپس آ رہی ہوں. پھر میری ممی تو کرسچن بن چکی تھی، میری ممی کو برا لگ رہا تھا کہ چرچ کیوں نہیں جا رہی ہے. وہ مجھے تو پریشرائز کرنے تھا آنے کے لیے چرچ میں بول رہی تھی کہ میرا ایگزام ہے مجھے پڑھنا ہے، مجھے ضرورت ہے مجھے پڑھنا ہے، مجھے بہت سارے ٹاپکس کور کرنے تو میں کبھی اور رہ جاؤں گی مجھے بھی مت بولو. وہ اتنا زبردستی پریشرائز کرا نا انہوں نے، آپ یقین کرو اتنا پریشرائز کرا کہ میرے کو جانا ہی پڑا وہاں پہ، کیونکہ کل دماغ بھی بڑا خراب ہو گیا تھا، مطلب موڈ بھی آف ہو گیا تھا نا اتنی زبردستی کیوں ہو رہی ہے میرے ساتھ. پھر یہ سارے تمام چیزیں ہوئیں. پھر میں نے کیا کرا، پھر میں نے تھوڑا سا رو کے بات کی. میں نے فائنلی بول دیا کہ پلیز میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہ کری جائے یہاں سے پلیز. پھر میں نے رو کے بات کی. پھر وہ تھوڑا سا سمجھے کہ نہیں بھائی اب یہاں پہ دال نہیں گلے گی. تو پھر میں چرچ جانا مطلب بالکل چھوڑ دیا، میں گھر میں رہی. اور پھر اس طریقے سے کچھ 1.5 سال کچھ ایسے بیت گئے. پھر جب یہ سال بھی تھے وغیرہ وغیرہ، پھر آپ یقین کیجیے پھر ایسا ہوتا ہے. تو میں نے وہاں پہ جانا تو پھر میں نے بالکل ہی پھر میں نے چھوڑ دیا. تو میں گھر میں اپنی سیلف اسٹڈی کرنے لگی. اسٹڈی کرتے پھر ایک وقت آگے کی تو دیر میں بائبل کو پھر میں شروعات سے میں نے کم سے کم 2-3 بار سسٹر میں نے پوری موٹی بائبل ہے اس کو میں نے پورا پڑھ کے ختم بھی کیا ہے 2-3 بار اس کو میں نے. لیکن اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کی بار میں جو مائنڈ میں جو اسٹک ہو گیا تھا نا، ایک ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ اس کو نکالتا نہیں ہے، وہ پھر اسٹک ہو گئی تھی وہ بات. صرف وہ یہی سے شروعات ہوئی میری اسلام کو جاننے شروع کرنے کی، یہی سے وہ شروعات ہو گئی. پھر ایسا ہوا کہ میں کبھی گھومنے گئی تھی تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میں جب کوئی ٹورسٹ ماز گئی تھی تو وہاں پہ میں رونے بھی لگی تھی اذان سن کے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ سچ بول رہی ہوں، یہ میری زندگی کی پہلی بار کوئی ایکسپیرینس تھی جس میں میں نے اذان سنی تھی. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں ایک ایسے علاقے میں رہتی تھی جہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھا اور مسلم بہت ہی نہ کے برابر جسے کہتے تھے. اس وجہ سے ہمارے آس پاس کوئی مسجد نہیں تھی تو میں نے کبھی زندگی میں اذان نہیں سنی تھی. تو جب میں کبھی گھومنے گئی ٹورسٹ ماسک ہے وہ وہاں پہ جب گھومنے گئی تو وہاں پہ لڑکیوں کو بھی اندر جانا مطلب ایسے بیٹھنا الاؤڈ رہتا ہے. تو وہاں پہ جب میں بیٹھی تو جب اذان ہونے لگی نا، وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ میرے کانوں میں اللہ اکبر پڑھا. ایکچولی بڑے اسپیکر سے اللہ اکبر میرے کان میں آیا اور بہت سارے جو کلمہ ہے پورا کا پورا وہ جب میرے کان میں پڑا جب میں نے سنا. حالانکہ میں نے اس میں سے سسٹر مجھے ایک شبد سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک شبد مجھے اس میں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ عربک ہے میں کیا جانتی ہوں، میں نہیں جانتی تھی. مجھے ایک شبد اس میں سے سسٹر سمجھ نہیں آ رہا تھا. لیکن آپ یقین کے سسٹر جب میں وہ پوری اذان اتنی شروع بھی نہیں ہوئی، صرف اس کا پہلا شبد شروع ہوا سسٹر اللہ اکبر. جیسے اللہ اکبر شروع ہوا سسٹر میرے آنکھوں سے آنسو ایسے جھڑنے لگے. وقت ہو گیا بتاؤ رکے نہیں. ایسا لگا مجھے سسٹر کی کچھ ہے جو کہ مجھے بہت بلا رہا ہے. اور جب میں نے وہ شبد سنا تو میں نے اپنے دل سے صرف ایک بات بولی، صرف ایک بات میں نے بولا کہ خدا تو جو بھی ہے مجھے خود کو ریویل کر دے، مجھے خود کو دکھا دے تو کون ہے. میں نے صرف ایک چیز بولی. اور جب وہ اذان میں نے پوری کی پوری سن لی اس کو، جب وہ اذان ختم بھی ہو گئی کمپلیٹ بھی ہو گئی اور جب میں دیکھ رہی تھی کہ سارے مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اپنی، تو میں وہ درشیہ دیکھ رہی تھی سارا کا سارا کہ کیسا ہے. میرے آنسو اذان بند ہونے کے باوجود بھی نہیں رک رہی تھی. میں اس کے باوجود بار بار روتی رہی. شاید میں کچھ گھنٹے میں اس میں گھنٹوں روئی ہوں گی. ایسا ہوا صرف اس کچھ 2 منٹ کی کچھ اذان پر میں گھنٹوں روئی. پبلک کے آگے پبلک دیکھ رہی تھی میرے آنسو.
पब्लिक देख रही थी से क्या हो गया, और मेरा अटायर भी मतलब ऐसा ही था, मैं जीन्स वगैरह में थी, कोट वगैरह टॉप सी सब मैंने पहने हुए थे, तो मैं उसी में थी वहीं पे, वो सब लोगों के सामने मैं खड़ी थी। मैं औरतों को भी देख रही थी, पूरा उन्होंने पर्दा अच्छे से किया हुआ है, मुझे उसने भी काफ़ी मुतासर किया। मैंने देखा यार कि ये जो औरतें हैं ये एक्चुअली इन मतलब की इतनी ज़्यादा इज्जत इनको मिल रही है कि इनको इनकी जो पहचान है वो इनकी इंटेलिजेंस है, इनका अपीयरेंस नहीं है, तो यानी कि ये पहचानी जाती हैं इनके नाम से, इनके काम से, इनके सूरत से नहीं, इनकी शक्ल से नहीं। तो मैं जब उनके सामने खड़ी थी जीन्स में, मेरे को लगा कि मतलब मेरे को इतनी मैं करैक्टर हुई, मेरे को लगा कि नहीं, ये जो इज्जत की ये जो लाइफ है, ये कुछ है इसमें जो शायद मुझे बुला रही है, जो शायद मुझे खींच रही है अपनी तरफ। फिर मैं घंटों रोई। फिर जब मैं घर गई वहाँ पे, तो मैं घर जा रही थी, मैं रास्ते में पूरा मेरी एक आदत होती थी स्ट्रिक्ट की, मैं जब रास्ते में होती थी ना तो मैं हमेशा कार में कान में देर लगा के मैं गाने सुनते हुए आना जाना ट्रैवल करती थी। मैं गाने सुने बिना मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, ये मेरी हैबिट थी। लेकिन वो जब मेरे साथ ऐसा हुआ, अजान सुन के आप यकीन कीजिए, जब मैं रास्ते में चल रही थी ऐसा लग रहा था मैं खोई हुई हूँ, मैं शायद अभी होश में नहीं हूँ अभी। और जब मैं सफ़र करके घर में जा रही थी, मैं किसी ट्रांसपोर्ट से, तो मैंने कान में कोई लीड नहीं लगाई और शायद मेरा घर कब आ गया मुझे ये पता ही नहीं चला कि कब मेरा घर आ गया और कब मैं घर भी आ गई। मतलब पूरे रास्ते शायद मैं एक उस सुकून में थी जो कि मुझे 2 मिनट की आवाज़ ने दे दिया था शायद से। मैं इतनी खुश थी। और उसके बाद फिर क्योंकि फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि कुछ था इसमें, कुछ मैजिक था जो ये करके चला, ये आवाज़ करके चली गई। ये शब्द क्या थे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं जब घर पे आई सिस्टर, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि मतलब क्योंकि कोई वर्ड तो समझ आया नहीं था कि ये है क्या, तो मैं अल्लाह अकबर कुछ ऐसा करके डाल ही नहीं पा रही थी यूट्यूब पे। तो फिर मैं मुस्लिम प्रेयर करके कुछ ऐसे डालने लगी, तो वो नमाज वगैरह का आ रहा था, अजान वगैरह का नहीं आ रहा था। लेकिन वो हुआ ऐसा कि अजान का कोई मुझे दिखी गया, कोई ऐसे दिखी गई, कोई क्लिप आई गई सामने। और मैंने कहा, जब मैं इसको सुना फिर मेरा दिमाग और ज़्यादा ठंडा हो गया सिस्टर। मैंने कहा कि थैंक गॉड मुझे ये मिल गई। यूट्यूब पे दोबारा सुनने के लिए इतनी तड़प गई मैं कि मैंने उसको फिर मैंने क्या किया, उस क्लिप को मैंने डाउनलोड किया, उसको ऑडियो में डाउनलोड कर लिया और मैं उसको पूरी रात सुनती रहती थी। रात भर सोती नहीं, पूरी रात मैं अज़ान सुनती थी। फिर मेरे को कुछ नशीद से भी मेरा तारुफ हुआ, बहुत अच्छी नशीद है, वो भी सुनती थी मैं। एक गाइडेंस ऑफ अल्लाह पर एक नशीद है बहुत अच्छी, वो भी सुनती थी। तो ऐसा आप यकीन कीजिए, फिर एक क्रिसमस का टाइम आया, जब 25 दिसंबर आया तो क्रिसमस था हमारे घर में, और क्रिसमस सेलिब्रेशन का टाइम आया। आप यकीन कीजिए क्रिसमस सेलिब्रेशन होने वाला है शाम को, और मैं सुबह अपने घर में अपने कार में कान में मैं लीड लगा के अजान सुन रही हूँ, उसमें मैं मगन हूँ। क्रिसमस के दिन ऐसा हो रहा था मेरे साथ सिस्टर। ये हकीकत है, उन्होंने पहचान लिया था सिस्टर की खुदा कौन है जो मुझे पुकार रहा है सही रास्ते की तरफ। वो बता रहा था सिस्टर की मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, तो इधर आ जा। मुझे खुदा ये कह के बुला रहा था, बेटा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ। फिर जब मैं वहाँ पे अजान सुन रही थी ना, मैंने बस खुदा से एक दुआ की थी, और एक दुआ मैं जब आपको बताना भूल गई थी, वो ये की थी मैंने इसमें ऐड करके कि खुदा तू जो भी है, बस मुझे जब तक मैं सच नहीं जान जाती प्लीज़ मुझे ज़िंदा रख। मैं सच जान के तुझको जान के मरना चाहती हूँ, मुझे बस थोड़ा ज़िंदा रख, मुझे अपने आप को बता दे कि तो कौन है, फिर मैं मर जाऊँगी। बस तू मुझे मौत मत दे पहले, इससे पहले कि मैं तुझे जानूँ, बस मुझे अपने आप को बता दे, रिवील कर दी। तो यही मेरी उस से वो थी गुहार थी जो कि मैंने की। फिर मैं घर आ गई, बड़ी उसी खुमार में रही, उसी मैजिक में रही जो 2 मिनट की अजान ने शायद मेरे पे किया था। और मैं फिर पूरी रातों को अजान सुनती थी। क्रिसमस सेलिब्रेशन है और मैं उसकी भी तैयारी, मतलब कुछ अलग हो गया था मेरे साथ। मैं क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी भी कर रही हूँ, लेकिन रात भर अजान सुन रही हूँ। तो वो धीरे धीरे एक प्रोसेस था, जिस मतलब एक धीरे धीरे मतलब अल्लाह जैसे मुझे बुला अपने तरफ खींच रहा था धीरे धीरे। मैं फिर क्रिसमस सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया ऐसे ही। फिर उसके बाद फिर दिसंबर के बाद फिर ये जनवरी आया अपना। फिर जनवरी में फिर मेरे साथ वही इंसिडेंट हुआ। मैं आज भी वो तारीख मुझे याद है, 6 जनवरी वो तारीख है जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि मेरे पापा ने फिर मेरे को यही गाली वगैरह दी, धमकियाँ दी। मेरे उनकी जो दूसरी वाइफ है उन्होंने ये सब किया था व्हाट्सएप पे मेरे साथ। फिर ये सब हुआ मेरे साथ, तो उस वक्त मैं बहुत टूट गई थी। तो ये सब चीज़ें मैंने जानी कि ये देखो हिंदू हो के ये सारे राइट्स वगैरह देखो कहाँ ही एक्सप्लॉइट हो रही, ये राइट्स की बातें करते हैं, कहाँ एक्सप्लॉइटेशन औरत का कहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें सब मैंने देखी। और अजान की जो खूबसूरती है वो मैं पहचानी गई थी। फिर मेरे को एक आइडिया मिला कि क्यों ना मैं ये जो
ये जो मेरे साथ बीत रहा है इसको जानोगे, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। अगर मैं मुसलमान होती तो क्या मेरे साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट होता, अगर मेरे पापा दूसरी शादी करते तो फिर मैंने उस चीज़ को जाना, मैंने औरतों के राइट्स को जाना। मुझे पता चला कि ये जो दूसरी तीसरी चौथी शादी है ये ऐसे ही नहीं करनी है आदमी पर। आदमी के मज़े के लिए नहीं रखा गया, ये उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए रखा गया है, ये मुझे पता चला। बिल्कुल। और फिर इस चीज़ से मैं आगे बढ़ती गई। फिर मुझे इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी जवाब मिला। मुझे ये जवाब मिला कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही है वो जिनसे हमारी जो ये मुसलमान जो ये कौम है जो ये चली आ रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये यहाँ तक जो चली आ रही है ये उन्हीं से निकली। यही वजह है कि उसको माँ पे हायर किया गया था। क्योंकि फिर मुझे धीरे धीरे जब मैंने चीज़ों को सुना मुझे पता चला कि जो यहूदी है उनको घमंड इस बात का था कि जितने भी तमाम प्रॉफिट्स है वो हमारे उससे आए हैं, ब्लड लाइन से आए हैं। इसी वजह से वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की स्टोरी को पहले हाइड करते हैं ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम पहुँच ना सकी। ये मुझे बहुत अच्छे से पता चला। फिर ऐसे ही हुआ था, मुझे धीरे धीरे पता चला। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की स्टोरी खुली, मुझे पता चला कि यहाँ पे किस तरीके से हुकूक दिए जाते हैं एक औरत को जो कि माँ पे और उसका मतलब इकलौता बेटा कर रहे थे इसाक अलैहिस्सलाम को। लेकिन इस्लाम में इसाक अलैहिस्सलाम को भी बेटा कहा गया बहुत दिल खोल के, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी दिल खोल के ही बेटा कहा गया। इस्लाम में मैंने ये चीज़ देखी, मैंने ये देखा हाजिर अलैहिस्सलाम जो कि स्लेव वुमन थी हसार अलैहिस्सलाम की, लेकिन उनको पत्नी का दर्जा भी उनको वहाँ पर है। तो मतलब उनको ये जो स्लेव करते हैं कि ये सब वो सब ऐसा नहीं है, वो उनको दर्जा है उनके पास, एक उनको इज्जत है उनके पास, उनके पास राइट्स है अपने कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा गलत होता है तो उनको क्या क्या मिल सकता है। उसके ज़रिए मैंने ये देखा कि जब मैं क्रिश्चियन थी तो मैंने ये देखा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं उनके चैनल्स जब मैं देख रही थी सिस्टर, तो मैंने देखा वहाँ पे भी इस्लाम के खिलाफ कंटेंट पड़े हुए हैं। मैंने देखा और जो हिंदू चैनल्स हैं जितने भी मैंने देखा वहाँ पे भी इस्लाम के खिलाफ कंटेंट पड़े। मेरे को इतना अजीब लगा, मैंने कहा चैनल तो हमारे हिंदू है, क्रिश्चियन ये चैनल है, बात है तुम इस्लाम की कर रहे हो, ये क्या बात हुई? कोई लॉजिक नहीं। और बातें कर भी रहे हैं तो उसमें झूठी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, खुद की बनाई हुई कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, खुद कुछ भी बातें कर रहे हैं उसमें, ये मैंने देखा यूट्यूब पे। लेकिन अब लोग ये भी कहेंगे कि क्या वो सब सुन करके देख करके क्या मेरे को ये नहीं लगा कि इस्लाम गलत है? तो ऐसा नहीं है। मैं इतना जानती थी कि मैं एक पूरे रिलीजन को ये यूट्यूब वीडियो से जो कि खुद मुस्लिम है ही नहीं, मैं उनसे नहीं समझ सकती। एक मुसलमान और ख़ास करके एक स्कॉलर ही तो समझा सकता है कि इस्लाम कैसा है। तो फिर मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखा। मैंने एक्स मुस्लिम्स की वीडियो वगैरह मेरे सामने आई, लेकिन एक दो सुनी मैंने, लेकिन मैंने इस चीज़ को समझा हुआ था कि नहीं, ये लोग इस्लाम नहीं समझा सकते। और मुझे ये थोड़ा बहुत मालूम था कि इस्लामोफोबिया नाम का कोई टर्म है और लोग बहुत ज़्यादा इस्लाम से कहीं ना कहीं वो करते हो। इंडिया में हम वो चीज़ देख भी सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ ठानी हुई थी कि मैं इस्लाम को समझने के लिए एक्स मुस्लिम्स की वीडियो तो कभी नहीं देखना चाहूँगी, कभी नहीं देखूँगी मैंने ये ठानी हुई थी ये बात। और ऐसा नहीं है कि मैं कि मतलब अब लोग बोलेंगे कि तुमने देखी नहीं इसलिए तो मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आज मुस्लिम हूँ, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया इस्लाम में आए हुए। मैं करीबन मुस्लिम हूँ, मैंने उनकी वीडियो भी देखी और मैं आज भी मुसलमान हूँ। मैं इस बात को चाहती भूख के कह सकती मैं आज भी मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये बस मैंने क्या किया कि मैंने इनके चैनल को तो मैंने बिल्कुल भी देखा नहीं, मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ पर इग्नोर किया क्योंकि मैं समझ सकती थी, क्योंकि मैं जब हम क्रिश्चियन थे तो हम जानते थे कि वो कोई एक्स क्रिश्चियन होता है तो वो क्या स्ट्रैटेजी खेलता है अपने चैनल को चलाने के लिए और धंधा करने के लिए। तो मैं ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती थी और आज भी समझती हूँ। यही वजह कि मैंने नहीं देखा। तो फिर ऐसे ही हुआ सिस्टर कि मैंने यहाँ से इनको नहीं समझना, मैंने ऐसे ही समझा। मैंने क्या किया, मैंने और फिर ये जब सारी चीज़ें हुई, फिर रमज़ान का महीना आया पिछले साल जब मैंने इस्लाम फरवरी में सिस्टर मैंने एक्सेप्ट किया था। जनवरी में ये मेरे साथ इवेंट हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था, ये मेरे को धमकियाँ और गालियाँ मिलने वाला मेरे खुद के पापा से और उनकी दूसरी वाइफ से। फिर फरवरी का वो महीना था जब मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। रात के फिर क्या कहते फिर ये जो महीना है धीरे धीरे, लेकिन मैं फिर समझ रही थी उसको ऐसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। एक स्टडी कहीं ना कहीं नहीं कह सकते कि चली, मैंने उसको फिर थोड़ा पढ़ा उसको। फिर महीना आया रमज़ान का,
रमज़ान का, और तब तक मैं काफ़ी हद तक उस सवालों पर मैं देख चुकी थी, काफ़ी स्कॉलर्स को मैं सुन चुकी थी, और ज़ाकिर नाइक साहब को सुन चुकी थी, बाकी जितने भी मुफ्ती लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस्लाम को सही तरीके से, बहुत सारी तरीक़ों से, बहुत सारे मायनों से इस्लाम को समझा रहे हैं, मैंने उनको भी सुना साथ ही साथ। और फिर मैंने क्या किया सिस्टर, मैंने कुरान अपने लिए मैंने अपने लिए कुरान खरीदी। मैंने कुरान को मैंने कहा कि मैं पूरा पढ़ूंगी, और जब पूरा पढ़ूंगी कुरान को तभी मैं कलमा पढ़ूंगी जब मुझे समझ में आएगी। कुरान को मैंने पूरी कुरान पढ़ी सिस्टर, और अपने जो मेरे सवालात थे प्रॉफिट्स की लाइफ को लेकर के वो भी मैंने समझे अच्छे से। हदीस वगैरह उनकी बुक्स तो खैर मेरे पास मैंने मंगाई, लेकिन मैंने उनको ऑनलाइन मैंने उनको पढ़ने की समझने की कोशिश की। फिर काफ़ी समझ में आया कि औरत की इज़्ज़त किस तरीके से होती है, किस तरीके से इस्लाम एक पूरा का पूरा लॉ हमारे सामने रखता है, कानून हमारे सामने रखता है जो कि बाकी रिलीजन नहीं रखते। तो ये मैंने उस चीज़ को समझा, और फिर जब मैं इस चीज़ से पूरी की पूरी मैं एकदम वो हो गई, और ये अजान तक वो तो था ही दिल में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ सिस्टर कि सभी इस्लाम जितने भी मेरे सवाल थे इस्लाम से जुड़े हुए, क्योंकि सवाल तो थे ही, क्योंकि कुछ सुने थे जैसे लोग आयशा रज़ियल्लाहु ताला की एज पर सवाल करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी पर, ये वगैरह वगैरह, ये सारे मैंने क्या किया सिस्टर, मैंने लिख लिए और उनका जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। जितने भी मुफ्ती हैं, हमारे मौलाना लोग हैं, जितने भी स्कॉलर हैं जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने इनके लेक्चर सुने। मैं इस्लाम में अपने सभी सवालों को जवाब ढूंढने लगी। बाद में मतलब सवाल सारे जितने भी थे उनका जवाब ढूंढने के बाद ही शामिल होना चाहती थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में मैंने जो गलती की थी वो ये की थी कि मैंने सवाल को मैंने क्या किया, पोस्टपोन किया था। मैंने बोला था कि मैं ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बाद में इसका जवाब मिल जाएगा, जो कि मेरी गलती थी कि फिक्री अंदर से चाहती कि मैं अगर मुस्लिम बनूं तो एक प्राउड मुस्लिम बनूं, और वो तभी होता है जब हम अपने दीन के बारे में सब जानते हो, दीन के बारे में अच्छे से जानते हो, कॉन्फिडेंटली जानते हो। तो रिसर्च करके मैंने अपने सवाल के जवाब ढूंढने शुरू किए, और मैंने और अल्लाह ने मेरे को बरकत दे दी थी। मैं धीरे धीरे मैं जॉब वगैरह भी करती थी, लेकिन उन जॉब से पहले नहीं हट करके, क्योंकि सिस्टर ये मैंने देखा है जैसे फेमिनिज्म, ये जो लोग बोलते हैं ना कि जॉब करना है ये वो, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये जब मैं जॉब कर रही सिस्टर मैंने चीज़ देखी कि मेरी कैपेबिलिटी, मेरी एजुकेशन से ज़्यादा मेरे अपीयरेंस की वैल्यू थी। जब मैं इंटरव्यू देने जाऊँ वो ये देख रहे थे कि कैसे अच्छी दिख रही है, तो इसको बिठाएंगे। मतलब मेरे अपीयरेंस की वजह से मैंने काफ़ी जॉब्स की। मैंने इंश्योरेंस कंपनीज जो थी इनमें जॉब की, रिसेप्शनिस्ट की मैंने जॉब की, रिसेप्शन पे चल, और ये आप ज़्यादा देखेंगे कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे हमेशा लड़कियों को बिठाते हैं। उसकी वजह ये कि वो एक लड़की को मतलब एक तरीके से शो के इसकी तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब भी कोई ऑफिस में एंटर हो, ये इस जगह में एंटर हो, तो सबसे पहले एक लड़की दिखे जिससे लोग बातें करें सबसे पहले वहाँ पे, तो मतलब एक तरीके से उनको अट्रैक्शन उनका क्रिएट करवाया जाता है। इनकी फेमिनिज्म की जो असली पोल है वो यही खुलती है कि वो तुम्हारी इंटेलिजेंस पे नहीं, वो तुम्हारे अपीयरेंस, तुम्हारे बॉडी फिगर, तुम्हारा चेहरा, इन सब चीज़ों के बेसिस पर तुम्हारे को एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं। हकीकत ये बहुत कड़वी सच्चाई है, बड़ी सच्चाई है जो कि मैं रियलाइज़ कर चुकी थी। तो अल्लाह ने मेरे को बहुत ज़्यादा फिर नवाजा भी, क्योंकि अल्लाह देख रहा था कि अजान सुनती है मेरी तरफ आई नबी, इसकी चाहत है, इसकी तलब है, इसको भूख प्यास लग रही है दीन की, जो कि इसकी तृप्त होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो अल्लाह ने क्या किया, मेरे को कहीं ना कहीं फिर मेरे को घर में काम कहीं ना कहीं अल्लाह ने दे दिया। मैं घर में होम ट्यूशन्स बच्चों को देने लगी, और मेरे से थोड़े पैसे भी जुड़ने लगे, क्योंकि पापा तो मेंटेनेंस उठा नहीं रहे थे, तो थोड़े पैसे जो जुड़ते थे उससे थोड़ा घर भी चलता था। और थोड़ा सा फिर मैं क्या करती थी कि बाकी जो थोड़ा अपना बचा था उसके लिए अपने लिए इस्तेमाल करना वगैरह, तो मैंने उन्हीं पैसों से कुरान भी खरीदी थी। तो कुरान उन्हीं पैसों से खरीदी, उसको पूरा पकड़ा। मतलब अल्लाह ने मेरे लिए इंतज़ाम भी किए। एक वक्त जहाँ पे मेरे पास मतलब एक नोट नहीं है, 50 रुपये का एक नोट नहीं है मेरे पास, वहाँ पे अल्लाह ने मेरे लिए कुरान के लिए भी पैसे कहीं ना कहीं वो करवाए। ऐसा किया अल्लाह ने। उसी पैसों से फिर मैंने कुरान खरीदी, क्योंकि मम्मी से मैं पैसे किस मुंह से मांग सकती थी। वो मेरी माँ खुद ही परेशान थी अपने ऐसे पति की वजह से। क्रिश्चियनिटी जो है बेबस लोगों का द्वारा चल कर आई, लेकिन इस्लाम सिस्टर मैं कहूँगी ऐसा लगता है कि खुदा खुद मेरे पास आया मुझे बुलाने के लिए, जबल लगाने के लिए। मुझे ऐसा लगा सिस्टर अल्लाह की शख्स तो मोहताज नहीं हुआ,
उसने खुद वो खुद मेरे पास आया, उसने फिर इंतजाम किया हाल को मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, फिर उससे मेरे थोड़े थोड़े पैसे की सेविंग करूँ, कुरान के लिए मैं पैसे जोड़ने शुरू कर रात को अजान से दिन में बच्चों को पढ़ा के कुरान के लिए पैसे जोड़ती थी, ऐसे करती थी मैं। फिर वही कुरान पूरी मैंने अपने कुरान में गई। फिर जब मैंने अपनी सभी सवालों के जवाब पा लिया, जैसे आयशा रज़ियल्लाहु ताला की एज पर और जितनी भी जो ये 72 हुरों के सवाल खाते हैं वगैरह वगैरह, तो मैंने सारे लिख ली थी। तो मैंने इन सब सवाल मैंने बोलते और बोलते अल्हम्दुलिल्लाह जो सब अच्छे सवाल थे तो थे या जिस बख्तली जब मुझे तसल्ली मिल गई कि तब मैंने अपना रात के 3 बज रहे थे सिस्टर, रात के 3 बजे मैंने जब अपना आपको एक श्योरिटी मेरे को मिली, तसल्ली मिले दिल से, मैंने अपना रात के 3 बजे शायद 3 तकरीबन हो रहे होंगे, मैंने अपना शहादा अपना कलमा अपने घर पर ही बोला। खुद मैंने ऐसे बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत पूजा के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। ये महबूब कलमा मैंने बोला, मैं ये ऐड करना चाहती हूँ। फिर सिस्टर जैसी मैंने शहादा बोला था अपना, फिर उसके बाद रमज़ान आया, रमज़ान के फिर मैंने सिस्टर पूरे रोज़े भी रखे। मेरे पिछले साल अल्लाह ने मेरे को मतलब इसी तरीके इसी वक्त मैंने वीडियो वोट कराया था कि जैसे मैं शहादा बोलूँ ऐसे ही मुझे रमज़ान की भी मिल जाए, मौका मिल जाए। तो मैंने रोज़े भी पूरे रखे और रोज़ा रखने का सिस्टम मुझे बहुत बढ़ कर के अल्लाह ने मुझे अजर दिया। उसने मेरी कमाई को बढ़ा दिया, उसने मुझे और बच्चे दिए पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स दिए मैं, और मेरे स्टूडेंट्स बढ़ते गए, मेरी कमाई और ज़्यादा अच्छे से होती गई, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हालात मैंने संभाल लिए थे। और मैं इसमें थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ, फिर जैसे जब मैंने जब अल्लाह ने मुझे ऐसे बरकत दी थी, थोड़ा ऐसे बच्चे ज़्यादा स्टूडेंट्स दे करके उसके बाद क्या होता है कि फिर जो मेरा हिजाब आ जाता है, फिर एक को पर्दा करना होता है। तो मेरे साथ इससे ऐसा भी हुआ था, जब मैंने कुरान मंगाई थी ना, मेरी मम्मी नाराज़ थी बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी मतलब बहुत नाराज़ हो रही थी कि ये सब क्या कर रही है घर में, ये सब क्या चल रहा है। तो हो लेकिन उनको मैंने थोड़ा पता नहीं लगने दिया। लेकिन एक वक्त सिस्टर आ जाता है ना कि हमारा जज्बा बहुत बढ़ जाता है। अब होता है कि अब में से ईमान अपना नहीं छुपाया जा रहा, अब मैं नहीं छुपा सकती। एक जज्बा आ गया था मेरे अंदर। फिर मैंने इस चीज़ को डिस्क्लोज किया कि मैं इस्लाम को कबूल कर चुकी हूँ, तलमा बोल के मैंने मम्मी को ये चीज़ बता दी खुल करके। उनका रिएक्शन ऑब्वियसली नाराज़गी का था ही। आज भी उनको ऐसी कोई खुशी नहीं है मेरे इस्लाम में आने से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे लिए इतना इंतज़ाम किया कि कम से कम मेरी मम्मी मुझे नमाज से नहीं रोकती है। जैसे नमाज से कुरान पढ़ने से कम इतना उनका दिल मेरी मम्मी का नरम अल्लाह ने किया हुआ है। मतलब इस्लामोफोबिया तो है लेकिन उतना नहीं है कि मतलब मेरे साथ कुछ गलत इतना कर दे। लेकिन हाइट ऐसा है कि मतलब थोड़ी बातें सुनने को मिली थी काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा। और जैसे हिजाब वगैरह मेरे पास थे नहीं, तो मैं जो दुपट्टा होता है ना स्टूल का, मैं वही अपना सर पर ढक लिया करती थी बाहर निकलने से पहले। हिजाब कम से कम मैंने एटलीस्ट हेड कवरिंग, वैसे तो पर्दा जो होता है वो तो सिर्फ हेड कवर नहीं, वो पूरा होता है शरीर का, लेकिन इतना मैंने कम से कम कर दिया था कि मेरे पास बुर्खा नहीं है। तो मैं कम से कम अपने सूफ के दुपट्टे को कम से कम ऐसे इतना करने लगी थी। तो जब मैं ऐसे रखती थी ना, तो मैं बता ही देती हूँ, मेरी मम्मी मेरे को बोलते थे कि तू भीख मांगने वाली लग रही है, बोल रही थी कि तू भीख मांगने वाली लग रही है, मत किया कर ये सब। तो मैं बहुत रोई। मेरे को मतलब ऐसे उन्होंने पहले डिमोटिवेट करना चाहा, क्योंकि उनके पास कोई टूल नहीं होता है ना जो इस्लामोफोबिया में गिरे हुए होते हैं, तो वो डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।